So, good morning, all. Today's topic for discussion here is accounting for revaluation of assets and liabilities when there is change in profit sharing ratio of existing partner. So, जब existing partner will decide that they will change their old one profit sharing ratio from a particular date, then next treatment arises, that is revaluation of assets and liabilities. So, on the change of profit sharing ratio, assets and liabilities are reevaluated. Why? Because with the passage of time, there may be increase and decrease in the value of assets. Assets may increase with the passage of time, assets may decrease with the passage of time. Any liability may increase or decrease with the passage of time. So, on the evaluation of assets and liabilities, there may be any profit or loss, which is to be, if profit is there, it is to be shared by all the existing partners, because of the combined effort of all the partners, they had maintained various assets of the firm. So if any increase in the value of if any profit on that increase in the value of assets is there, they had a right to share that profit, because in the future dates some partner is going to gain in their profit sharing ratio and other are going to sacrifice in their favor. So on that date when they will make a change in their profit sharing ratio, they will re-evaluate their assets, reassess their liabilities to calculate the profit or loss on the revaluation. For that, a newly opened account is to be prepared, which is known as revaluation account. The balancing figure of this account is profit or loss, which are to be shared, which is to be distributed between or among the partner as per which ratio? Old profit sharing ratio. Now, to treat this revaluation, there are two methods. फर्स्ट, व्हेन रिवाइज वैल्यूज़ आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज आया है, जब हम एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, उसके बाद जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो जो भी फर्म की एसेट्स और वैल्यूज़ हैं उनको किताबों में नई वैल्यू से लिखा जाएगा, पुरानी बुक वैल्यू से नहीं लिखा जाएगा. एंड सेकेंड, इट इज़ व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज़ आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कि जो इन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज आया है उस चेंज को ना रिकॉर्ड करते हुए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर टू बी रिकॉर्डेड एट देयर ओल्ड वन value. So here I am going to discuss the first one method, that is when revised values are to be recorded in the books. So here is the topic. For that, what you will do? First of all, we will go for preparing the revaluation account. What is the nature of this account? This account is nominal in nature. Why you can say that its nature is nominal account? Because this account is aimed at calculating profit or loss on revaluation of asset and reassessment of liabilities. That's why we will say that the nature of revaluation account here is nominal. This account is also known as profit and loss adjustment account. इसका दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सो हियर आर सम जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट. नाउ एज पर द फर्स्ट एंट्री, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर रिवैल्यूएट करते समय आपको ये पता चलता है कि जो एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, देन व्हाट एंट्री यू विल पास? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. एसेट अकाउंट को आपने क्रेडिट करा, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे, घटेगी तो क्रेडिट करेंगे, यानी उस एसेट के अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे. इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा रिवर्स, व्हेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज देयर, जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी
तो एसेट जब बढ़ता है द अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, सो एंट्री विल बी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगर हम लायबिलिटीज़ की बात करें तो इन दोनों एंट्रीज़ के ऑपोजिट लायबिलिटीज़ की एंट्री बन जाएगी। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। इट मीन्स व्हेन देयर विल बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, जब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो लायबिलिटी अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। जो भी उस लायबिलिटी का नाम होगा, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, ऑफिस रेंट, कुछ भी, तो उस पर्टिकुलर लायबिलिटी का नाम लिखना है। इसका उल्टा, व्हेन देयर इज़ अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, जब लायबिलिटी की वैल्यू घटेगी तो लायबिलिटी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, there may be few more items, that is unrecorded assets or liabilities. If it is given in the question that any of the asset is unrecorded, कोई asset unrecorded है, now firm is going to record that, तो यानी कि वो एसेट की वैल्यू फर्म की किताबों में बढ़नी जा रही है, तब आप क्या करेंगे? assets are going to increase, so unrecorded asset account will be debited टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसा ही अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी जो उसको रिकॉर्ड नहीं करा गया था, पर अब फर्म अपनी किताबों में उसको रिकॉर्ड करेगी, द एंट्री विल बी, लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो देयर मे बी टू मोर आइटम्स, दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट, उसको रिकॉर्ड करना है तो एसेट अकाउंट को डेबिट करिए और उसके अगेंस्ट रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करिए। देयर मे बी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो आप क्या करेंगे? लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है तो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी। नाउ द लास्ट पॉइंट, नाउ एट द एंड there will be profit or loss on revaluation of asset and reassessment of liability. If credit side is more than debit side, the balancing figure will be profit. What will be the entry? Revaluation account debit to partners capital account, or it may be partners current account if capital is fixed. Right? Now जैसे आप P&L को बैलेंस करते थे, if loss is there, it means debit side is more than credit side. This entry will be reversed and the entry will be partners capital account debit or partners current account debit if capital is fixed to revaluation account. So this is all about the journal entries which you will pass for preparing a revaluation account. Now here is the format of this account on the next page. See, this is the revaluation account. Now on the top, what you will write? Revaluation account. So you can see here on the debit side, decrease in the value of asset. आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको उस पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखना है। मान लीजिए स्टॉक की कीमत 20,000 से कम हो गई, टू स्टॉक 20,000, राइट। सो डिक्रीज इन द एसेट, ऐसे एंट्री बनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट क्रेडिट हो गया। सिमिलरली अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट में जाएगी, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी अकाउंट, उस लायबिलिटी का नाम। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी तो भी फर्म की किताबों में लायबिलिटी बढ़ी तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यानी आपको अनरिकॉर्डेड वर्ड नहीं लिखना है, टू जो भी वो लायबिलिटी है उसका नाम लिख देना है। अब हम क्रेडिट साइड पे आते हैं। बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट बढ़ेगी तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा। देखिए पोस्टिंग में एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे बाय एसेट, राइट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी घटेगी तो यहाँ पे आएगी बाय उस लायबिलिटी का नाम। अनरिकॉर्डेड एसेट होगा तो एसेट की वैल्यू किताबों में बढ़ी, इसलिए उस एसेट का यहाँ पे नाम लिखेंगे। ये साइड बड़ी होगी तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। रेशो, विच रेशो इज टू बी फॉलोड? ओल्ड रेशो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर ये साइड बड़ी है तो बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे आएगी बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विच इज टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब? जब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, क्वेश्चन में मैंशनड है। तो रेशो कौन सी फॉलो करनी है? ओल्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट the revaluation of assets and reassessment of liabilities.
we had discussed journal entries and preparation of revaluation account. If in the question examiner is asking to pass the entries, you will pass the journal entry. If examiner is asking to prepare revaluation account, you will make revaluation account.